السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹوری چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 Tombs، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، QMax سفائر، ساجد ریزیڈینسی، QMax مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، MK ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ، QMax فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام۔ صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز۔ شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، QMax فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز۔ ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ QMax فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ حکومت کے پروگراموں سے اپوزیشن بوکھلاہٹ کا شکار۔ اندرما مکانات پر 22,000 کروڑ روپے خرچ۔ نائب وزیر اعلیٰ تلنگانہ بھٹے وکرمارکا کا خطاب۔ کنپلی پمپ ہاؤس شروع کریں ورنہ کسانوں کے ساتھ پمپ کے موٹرز کو آن کیا جائے گا۔ آندھرا کو پانی فراہم کرنے کے لیے چندرا بابو نائیڈو اور ریونت ریڈی میں خفیہ معاہدہ، ہریش راؤ کا الزام۔ شہر میں یوم عاشوراء عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ بی بی کے علم جلوس کا انعقاد، مساجد میں جلسے اور دعائیہ اجتماعات، شہداء کربلا کو خراج، پکوان کا اہتمام۔ اور کرناٹک سے لایا گیا ہاتھی لکشمی جلوس کے دوران 2 مرتبہ بھٹک گیا۔ کچھ دیر کے لیے سنسنی اور افراتفری دیکھی گئی، مہاوت نے ہاتھی کو قابو میں کر لیا۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ نائب وزیر اعلیٰ تلنگانہ بھٹے وکرمارکا نے کہا کہ حکومت کے بہبودی پروگراموں سے اپوزیشن کو خوف پیدا ہو چکا ہے۔ اندرما مکانات کی تقسیم پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ بھٹے وکرمارکا نے کہا کہ کوئی بھی کتنی بھی سازشیں کر لے، ہم عوام کے لیے برابر کھڑے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں ہر ایک کو مکان فراہم کرنا ہمارا مقصد ہے۔ اندرما مکانات کے ذریعے 1 سال میں 22,000 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں۔
जो मुल्क में एक रिकॉर्ड है। नायब वज़ीर आला ने कहा कि पैदा होने वाले बच्चे से लेकर मुअम्मर अफराद तक बहबूदी प्रोग्राम किए जा रहे हैं, जिसको देखकर अपोजिशन जमात की बुनियादें हिलने लगी हैं। उन्होंने कहा कि 10 सालों में बीआरएस हुकूमत ने गरीब आवाम को मकान तामीर करके नहीं दिया, जिसकी वजह से आज करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत पड़ रही है। रियासत को लूट कर आवाम को गिरवी रख दिया गया है। बीआरएस ने जो कर्ज लिया उसकी अदायगी 10 साल के बाद की जाएगी, इस तरह का मुआहदा किया गया है। వచ్చే సమస్యల పరిష్కారం అవుతే మీరు కూడా భుజం కలిపి పెద్ద ఎత్తున ఇందిరమ్మ రాజ్యాన్ని తీసుకొచ్చారు. ఈ రాజ్యంలో గత ప్రభుత్వం 10 సంవత్సరాలు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇస్తామని, ఇల్లు లేని పేదవాళ్ళకి, ఆ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి ముసలి వాళ్లకు, పిల్లలకు ఆశ చూపించి 10 ఏళ్ళు వాళ్ళ ఓట్లు పొందడం కోసం ప్రయత్నం చేశారు తప్ప వాళ్ళ ఇల్లు కట్టించాలనేటువంటి ఆలోచన మాత్రం ఏమాత్రం చేయలేదు. बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर रुकन असम्बली हरीश राव ने कहा कि फौरन कनापल्ली पंप हाउस शुरू करके पानी दिया जाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो केसीआर की क़यादत में लाखों अफराद किसानों के साथ मिलकर कनापल्ली का रुख करेंगे और पंप हाउस के मोटर ऑन करने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे, अवामी ताकत का मुजाहरा करेंगे। पानी के ज़ख़ीरे की अहमियत होती तो वज़ीर आला को पानी से फ़ायदा उठाने के बारे में मालूम होना चाहिए। पानी की अहमियत को न जानने वाले हुक्मरान हैं और इस तरह तेलंगाना की मुश्किलात कम नहीं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि मेडिगड्डा बैरेज के तमाम गेट खोल देने से कनापल्ली पंप हाउस मोटर अगर ऑन करें तो पानी मिलने का मौका है। उन्होंने कहा कि यौमिया 2 टीएमसी पानी कनापल्ली पंप हाउस से हासिल कर सकते हैं। हरीश राव ने कहा कि अगर आज भी कालेश्वरम मोटर ऑन करें तो 15 अजला को पानी दिया जा सकता है। वजीर आला किसानों के पेट पर लात मार रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि श्रीसैलम में 30 जुलाई तक सैलाब का पानी जमा होता था। इस बार 36 दिन पहले ही सैलाब का पानी जमा हो गया। हरीश राव ने कहा कि 36 दिन हो गए लेकिन कलवाकर्ती के मोटर्स को ऑन नहीं किया गया। तेलंगाना रियासत को जो मुश्किलात पैदा हो रही हैं, इसकी वजह रेवंत रेड्डी हुकूमत कम पानी इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि कृष्णा के पानी को आंध्रा को मुंतकिल करना ही हुकूमत का मकसद है। चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी के दरमियान खुफिया मुआहदा हुआ है। उन्होंने कहा कि महबूब नगर जिले में कलवाकर्ती प्रोजेक्ट के मोटर्स को अगर शुरू नहीं किया गया तो हजारों किसानों के साथ मिलकर मोटर्स को ऑन करने की नौबत आएगी। ఈ రిజర్వాయర్లలో మీరు నిండా నీళ్లు నింపి పెట్టుకుంటే కొన్ని లక్షలాది ఎకరాల్లో 2 పంటలు పండే అవకాశం ఉంటుంది. అటు సాగునీటికి ఇటు త్రాగునీటికి ఢోకా లేకుండా ఉంటుంది. హైదరాబాద్ కానీ జిల్లాల్లో ప్రజల త్రాగునీరు కానీ పారిశ్రామిక అవసరాలు కానీ రైతులకు వ్యవసాయ అవసరాలకు అన్నిటికీ కూడా ఢోకా లేకుండా బ్రహ్మాండంగా ఈ రిజర్వాయర్లని నింపొచ్చు, రైతులకు నీళ్లు ఇవ్వచ్చు. ఎందుకు మీరు ఈ నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉన్నారు? ఇలా నీళ్లు ఉన్నాయి, పంపులు మోటార్లు ఉన్నాయి, రిజర్వాయర్లు ఉన్నాయి, కరెంటు అందుబాటులో ఉంది, మరి ఆలస్యం దేనికి? ఎందుకు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు? అంటే నీకు 2.5 మీటర్లు కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ ఎత్తులో నది ప్రవహిస్తూ ఉంది. జస్ట్ మోటార్లు ఆన్ చేయడమే ఆలస్యం. ఈజ్ ఇట్ నాట్ క్రిమినల్ నెగ్లిజెన్స్? స్పష్టంగా నీళ్లు తీసుకునే అవకాశం ఉండి కూడా ఎందుకు నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉన్నారు? రోజుకు 2 టీఎంసీల నీళ్లు తీసుకోవచ్చు. वजीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि नए स्टैंप के तरीक़ेकार की तैयारियां जारी हैं। आइंदा असम्बली इजलास में बिल पेश किया जाएगा। सेक्रेटेरिएट में एक आला सतही इजलास में वजीर मौसूफ ने कहा कि ख़वातीन स्टैंप ड्यूटी को कम करने पर गौर किया जा रहा है और पुराने अपॉइंटमेंट पर स्टैंप ड्यूटी को राहत देने पर भी गौर किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में ओहदेदारों से बात करते हुए कतई फैसला लिया जाएगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि स्टैंप कानून के मुताबिक दफा 26(4) निकात में तरमीम करते हुए बिल तैयार किया जा रहा है। इसको ऐवान असम्बली में मंजूरी देकर मरकजी हुकूमत को रवाना किया जाएगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि आम और मुतवस्सित तबके की आवाम को किसी किस्म का बोझ न पड़े और मौजूदा मार्केट के तहत आराजी कीमतों को तरमीम किया जा सके, इसके लिए तजावीज़ को तैयार रखने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। हुकूमत के विप बी इलैया ने कहा कि आने वाले इंतखाबात में बीआरएस पार्टी को जमींदोज कर दिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज से हमारा नारा होगा 100 नशिस्तों पर कामयाब होंगे, बीआरएस को जमींदोज करेंगे। उन्होंने कहा कि केटीआर को कई बार समझाया है लेकिन दिमाग ठिकाने नहीं आया। केटीआर एक बच्चा हैं, उनसे वजीर आला कैसे मुबाहिस करेंगे। रेवंत रेड्डी ने असम्बली इंतखाबात, पार्लियामेंट इंतखाबात, हत्ता कि कौंसल इंतखाबात में कोई उम्मीदवार भी नहीं छोड़ा। रेवंत रेड्डी ने हर जगह शिकस्त दी है। केटीआर अपने दिमाग को दुरुस्त कर लें। हमको भी केटीआर के अंदाज में बात करना आता है लेकिन हमारी तहजीब आड़े आ रही है। उन्होंने कहा कि लूटी हुई रकम से पिंक मीडिया के जरिए हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सदर ई अनिल ने कहा कि रियासत का दिवालिया निकालने वाला खानदान केसीआर का है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अरब ममालिक में अगर कोई ऐसा करता तो स्टेडियम में उसे संगसार करके हलाक कर दिया जाता। इस तरह की सजा भी दी जाए तो कम है। उन्होंने कहा कि केसीआर का रेवंत रेड्डी से क्या मुकाबला। उन्होंने कहा कि केसीआर की हालत चोर मचाए शोर जैसी है। पागलपन की गुफ्तगू बंद कर दें। आवाम को धोखा देने वाला धोखेबाज खानदान केसीआर का है। उन्होंने कहा कि केटीआर के खुले मुबाहिस के लिए रेवंत रेड्डी की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो ही काफ़ी हैं। वो प्रेस क्लब आएंगे तो हर मामले पर मुबाहिस करेंगे। ई अनिल ने तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव के मकतूब लिखने पर तनकीद करते हुए कहा कि दस्तूर में तरमीम करने के बाद ही तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल होगा। उन्होंने कहा कि रामचंद्र राव पहले फैसला कर लें कि बीजेपी बीसी तबके से इंसाफ कर रही है या नाइंसाफी। तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने कहा कि बीजेपी कारकुनों की जमात है। श्याम प्रसाद मुखर्जी की यौम पैदाइश के मौके पर तारनाका डिवीजन में एक बूथ सतह के सदर की क़यामगाह पहुंचकर उनसे बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी एक कारकुनों की जमात है, इसलिए उन्होंने बूथ सतह के लीडर की क़यामगाह पहुंचकर ये बताने की कोशिश की कि पार्टी आपके साथ है, ताकि ये पैगाम जा सके कि बूथ सतह से पार्टी कामयाब होगी तो रियासत में इख्तिदार हासिल होगा। सब मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि बूथ सतह का सदर एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन वो पार्टी के लिए काम कर रहा है। इस तरह हम सब मिलकर काम करेंगे तो रियासत में इख्तिदार हासिल होगा। నా డివిజన్లో ఉన్నటి ఒక బూత్ అధ్యక్షుడి ఇంటికి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా వారింటికి రావడం జరిగింది. భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక కార్యకర్తల పార్టీ. కార్యకర్తల వెంట నేను ఉన్నాను. బూత్ స్థాయి నుంచి కూడా పార్టీని బలోపేతం చేయడానికి ఒక రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా బూత్ ప్రెసిడెంట్ ఇంటికి పోయి ఇక్కడ బూత్లో ఉన్నటువంటి కార్యకర్తలను కలిసి ఇక్కడ చెట్టు నాటి ఈరోజు వారి కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి భారతీయ జనతా పార్టీ మీ వెంట ఉంటుంది, భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షుడిగా మీతో ఉంటాము, మనందరం కూడా కష్టపడి పనిచేసి రేపు రాబోయే రోజుల్లో భారతీయ జనతా పార్టీని తెలంగాణలో మనం ఇక్కడ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రయత్నం ఇప్పటి నుంచే చేయాలి. పార్టీ నిర్మాణం బూత్ నుంచే చేయాలి. బూత్ గెలుస్తేనే రేపు రాష్ట్రం గెలుస్తాము. కాబట్టి అటువంటి ఒక సందేశాన్ని ఈరోజు शहर हैदराबाद में यौम आशूरा अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। शहर की मसाजिद में जलसे शहदाए करबला, जलसे हज़रत याद इमाम हुसैन का इनक़ाद अमल में लाया गया। मुख्तलिफ़ तंजीमों की तरफ से ताज़ियती मजालिस का भी अहतमाम किया गया।
शिया बिरादरी की तरफ से बीबी का अलम जुलूस निकाला गया। जुलूस अलावा बीबी दबीरपुरा से दोपहर 1 बजे बरामद हुआ। जुलूस दबीरपुरा शेख फैज की कमान याकूतपुरा गंगानगर से गुजरते हुए एतबार चौक पहुंचा, जहां रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मिराज ने अलम पर धट्टी का नजराना पेश किया। जुलूस आलिजा कोटला सरदार महल से चार मीनार पहुंचा, जहां मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से धट्टी चढ़ाई गई। जुलूस चार मीनार से गुलजार हाउस पंजा शाह मंडी मीरालम पहुंचा, जहां बीआरएस और कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने भी धट्टी चढ़ाई। बाद में जुलूस जहरा नगर पुरानी हवेली दारुशफा से मस्जिद इलाही चादरघाट पहुंचा। जुलूस के रास्तों में पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर, टास्क फोर्स और सिटी पुलिस के अलावा सीआरपीएफ की टीमें तैनात की गई थीं। अज़ादारी करने वालों के लिए मजलिस की जानिब से ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के डॉक्टरों की टीमें खिदमात अंजाम दे रही थीं। इस मौके पर जीएचएमसी, बरकी और आबरसानी महकमेजात की जानिब से तमाम इंतजाम किए गए थे। जुलूस की गुजरगाहों में महकमे आबरसानी की जानिब से पानी का छिड़काव किया गया। अलम की निगरानी मजलिस के रुकन कौंसिल मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी बड़ी मुस्तैदी से कर रहे थे। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, जिनको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिनको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिनको बैठे बिठाए सताया गया, जिनको बैठे बिठाए सताया गया, जिनके बच्चों को भूखा रुलाया गया, जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिनकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, जिसने हक करबला में अदा कर दिया, जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, घर का घर सब सुपुर्द खुदा कर दिया, घर का घर सब सुपुर्द खुदा कर दिया, कर लिया नाश जिसने शहादत का जा, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, जिसका जन्नत से जोड़ा मंगाया गया, जिसका जन्नत से जोड़ा मंगाया गया, जिसको दोषे नबी पर बिठाया गया, जिस
کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جس کے بھائی کو زہر پلایا گیا، جس کے بھائی کو زہر پلایا گیا، جس کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ حیدرآباد سٹی پولیس کی جانب سے کمشنر پولیس سی وی آنند اور چار مینار کے پاس تاریخی بی بی کے علم پر ڈھٹی چڑھائی۔ ان کے ہمراہ ایڈیشنل کمشنر لا اینڈ آرڈر پولیس وکرم سنگھ مان، ڈی سی پی ساؤتھ زون اسنیہا مہرا کے علاوہ پولیس کے دیگر اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ مسجد چیونٹی شاہ کٹل گڑھا میں قدیم سالانہ جلسے شہدائے کربلا منعقد ہوا، جس میں ہر سال کی طرح اس سال بھی مجلس کے جنرل سیکرٹری و سابق رکن اسمبلی یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری اور جنید پاشا قادری نے اجتماعی دعائے عاشورہ پڑھائی۔ بتایا جاتا ہے کہ مذکورہ دعا کی وجہ سے متاثرہ افراد کو سانپ اور بچھو کے کاٹنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ احمد پاشا قادری نے اپنے خطاب میں ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری پر زور دیا۔ یہاں پر ہر سال عاشورے کے دن دعائے عاشورہ پڑھائی جاتی اور جلسے شہیدان کربلا منعقد کیا جاتا ہے۔ حسب روایت آج بھی جلسہ منعقد ہوا، جلسے کے بعد دعا پڑھائی گئی، عاشورے کی دعا اور کانچ کے عمل کی دعا دونوں پڑھائی گئی، ہمیشہ پڑھایا جاتا ہے۔ تقریباً 40 سال سے زیادہ کا عرصہ ہوا یہاں پہ یہ عمل میں پڑھاتا ہوں۔ ہمارے والد صاحب مقرر کیے تھے یہاں کے لوگوں کے اصرار پہ، انشاءاللہ سلسلہ جب تک حیات ہے باقی رکھیں گے۔ آپ لوگوں کا شکریہ۔ حیدرآباد میں 10 محرم کو روایتی طور پر شربت اور کھانا کھلانے کا رواج پایا جاتا ہے۔ حیدرآباد کی اس تاریخی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے شہر میں جگہ جگہ طعام عام اور شربت کی تقسیم کے نظارے دیکھے گئے۔ معصوم بچے شربت پلاتے ہوئے ایک دوسرے پر بازی لے جا رہے تھے اور بڑے جگہ جگہ کھانا پکوا کر کھانا کھلا رہے تھے۔ فلک نما، جہاں نما، مصری گنج، سید علی چبوترا، دودھ باولی، چار مینار، پتھر گٹی، یاقوت پورہ، دبیر پورہ، رین بازار اور چھاونی کے علاوہ دیگر کئی مقامات پر مسلمان شہدائے کربلا کے ذکر اور نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شہادت کے غم میں دکھائی دیے۔ تاریخی بی بی کے علم کی سواری کے لیے کرناٹک سے لائے گئے ہاتھی پر علاوہ بی بی سے جلوس نکلنے کے کچھ فاصلے کے بعد ہاتھی بدک کر بے قابو ہو گیا، جس سے تھوڑی دیر کے لیے افراتفری اور سنسنی پھیل گئی۔ ویٹنری ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ہاتھی کو راستے کا پتہ نہیں تھا اور خون کی بو اور شور شرابے سے آشنا نہیں ہے۔ فوری طور پر ہاتھی کے مہاوت اور اس کے ساتھیوں نے اسے قابو میں کر لیا۔ یہ واقعہ علاوہ کے پاس پیش آیا۔ دوسری مرتبہ اسی طرح کا واقعہ قدیم یاقوت محل تھیٹر کے پاس پیش آیا۔ رکن کونسل مجلس ریاض الحسن آفندی نے ماتمی گروہ اور عزاداروں سے خواہش کی کہ وہ ہاتھی سے کچھ دور فاصلے پر ماتم کریں۔ ہاتھی کی گزرگاہوں پر عرق گلاب اور فینائل کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ ان سب کے باوجود بی بی کا علم ہاتھی جلوس کے ساتھ
खैर खूबी से मस्जिद इलाही चादर घाट पहुंच गया। इसकी असल वजह यह रही कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन कौंसिल रियाजुल हसन आफिंदी कामयाब नुमाइंदगी और महावत से मशवरे के बाद सब कुछ ठीक रहा। हाथी के महावत ने मशवरा दिया था कि हाथी को छोटी गलियों और गुजरगाहों से न ले जाया जाए, जिसको अमल में लाते हुए महावत ने अपने तजुर्बे के साथ बीबी के अलम के हाथी को मंजिल तक पहुंचाया। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, एमके टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। हुकूमत के प्रोग्रामों से अपोजिशन बौखलाहट का शिकार। इंदिरमा मकानात पर 22,000 करोड़ रुपए खर्च। नायब वजीर आला तेलंगाना भट्टे विक्रमार्का का खिताब। कनापल्ली पंप हाउस शुरू करें वरना किसानों के साथ पंप के मोटर्स को ऑन किया जाएगा। आंध्रा को पानी फराहम करने के लिए चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी में खुफिया मुआहिदा। हरीश राव का इल्जाम। शहर में यौम आशुरा अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। बीबी के अलम जुलूस का इनेकाद। मसाजिद में जलसे और दुआया इज्तिमाआत। शुहदा करबला को खिराज, पकवान का एहतमाम। और कर्नाटक से लाया गया हाथी लक्ष्मी जुलूस के दौरान 2 मरतबा बिदक गया। कुछ देर के लिए सनसनी और अफरा तफरी देखी गई। महावत ने हाथी को काबू में कर लिया।
اور ناظرین اسی کے ساتھ 4TV خبرنامے کا یہیں اختتام ہونا چاہتا ہے. مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت. دیکھتے رہیں 4TV. خدا حافظ.